ये पर्टिकुलर चैप्टर मोरिस मीनो में आपको नहीं मिलेगा. ओके, इट इज ओनली गिवन इन टू आनंद कुमार और लाइक टेकमेक्स और टेक्निकल पब्लिकेशन. It is not available in Morris Meno, so you can refer Anand Kumar. Okay, or as well as any like technical publication also for this particular chapter. Okay, so A to D converter. First of all, what is the requirement of converter? We have already studied. Okay, if you have to transmit any signal, so if you use the analog signal, so there are a numbers of disadvantages of analog signal, like more bandwidth is required, less immunity to noise. So first of all, at the transmitter side, if your signal is analog, so we have to convert into digital signal. After that, by after transmitting at the receiver side, okay, we get the like digital signal. So again we have to convert into analog signal. वो आपकी general procedure है for communication purpose. Okay, so for this A to D converter having the numbers of time as well as D to A converter also divided into numbers of categories. Normally दोनों की like particular if it is a digital to analog तो उसकी दो methods है and analog to digital उसकी भी 2 or 3 methods है. So कोई भी एक methods normally आपको पूछते हैं. ठीक है. So first of all क्या at the transmitter side if your signal is analog signal, okay, so we have to require the anti-aliasing filter because if we do sampling in your analog signal, actually sampling आगे आ चुका है आपके I think basic में जो practicals थे उसमें कि sampling means you have to divide your sine wave into small numbers of part and after that you have to divide your full screen into some quantization levels and depend upon level this level value उसकी level की जो भी value है कि like 2.5 तो आपको 2 का binary उसमें लिखना है और 2.9 so it is around 3 so we have to write the binary of 3. In this way you can like convert analog to digital signal. But if two samples are mixed, अगर आपके दो samples है because of noise अगर mix हो जाते हैं during sampling, so it is very difficult to again convert your digital to analog क्योंकि आप जब digital to analog करेंगे तो आपको actual signal नहीं मिलेगा. So to remove this phenomena we have to use anti-aliasing filter before sampling. After that simply A to D converter. Okay, of course your signal pass from channel having some noise. So we have to pre-process our signals D to A converter and कोई भी signal हो if particular signal converted from digital to analog, okay, so always having some noises. So for this we have to use this smoothing filter and finally you can find out analog output. So this analog input at the transmitter side and this analog output at the receiver side. So it is normally the like procedure or concept of communication ki how your signal transmitted by an A to D as well as how again we can obtain our signal at the receiver side by using D to A converter. Okay, I think we already covered this portion but I again revise. Okay, so digital to analog converter, so simply one module is given. It is not a simply module. This particular module is dividing into two methods also जो भी next आएगी. Okay, B1, B2, B3 and B4 like n numbers of digit we can give and after using this bit we can find the output. अब वो कैसे find करते हैं वो as a simple आपको ग्राफ में दिया है. If we are using 4-bit DAC, 4-bit then of course we have the 16 combination from 0 to 15. Okay, so at axis we can represent 16 combination as well as we just find the binary 1 2 3 4 5 6 up to 15. This 15 it is called as a full scale voltage. Why it is full scale voltage? When we are converting this digital to analog, so this particular at a 15 level means जहाँ पे digital की वैल्यू सबसे ज़्यादा है वहाँ पे आपका analog भी आपको full मिलेगा in flow in full mode. So it is called as a VOFS, full scale output voltage 50. Sometimes maybe it's given also कि 10.2 is your full scale voltage in example, so you just directly take. Otherwise you have to just assume कि like 0 to 15 मुझे दिया है तो of course 15 मेरा क्या होगा higher level होगा means full scale voltage. And it is a particularly change in the output value. कितना change हो सकता है यहाँ पे देखो LSB है वो change हो रहा है पर like beat की 0 1 0 1 0 1 LSB continuously change हो रहा. So because of this LSB output में क्या effect आ रही है? It is simply represented by this
It is not necessary to represent that. Simply you can write this binary number and write decimal number. It's okay. 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 Performance parameters. How we can measure परफॉर्मेंस ऑफ योर D2A कन्वर्टर. मैंने डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट कर दिया. चलो उसके बाद क्या, वी हैव टू फाइंड आउट सम पैरामीटर कि ये पर्टिकुलर पैरामीटर है, इसकी वैल्यू ये आ रही है, मतलब इट इज अ बेटर कन्वर्जन. सो दिस आर द परफॉर्मेंस पैरामीटर फॉर DAC. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द रिजोल्यूशन. इट इज द नंबर्स ऑफ डिफरेंट, it is a numbers of a different analog output values that can be provided by a DAC. So we can say it is a 2n. If it is a n bit, then कितने output value हो सकती है 2n. Okay, and for second definition आप इस तरह से भी उसकी definition लिख सकते हैं. And for second definition it is also represented as a ratio of change in the output voltage resulting from the change of one LSB at a digital inputs. क्योंकि LSB आप अगर ऑब्जर्व्ड इन लाइक दिस वे, तो LSB कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट. So it is this particular effect, it is measured by resolution. It is defined as the ratio of change in the output voltage resulting from the change of LSB at the digital input. For n bit DAC it is given as, एक तो full scale voltage measure करना है, divided by क्या आएगा 2 raised to n minus 1, and V of S I already explained, it is a full scale output voltage. As per the first definition, if I take the 8-bit DAC, means 8-bit digital to analog converter, so what about my resolution? It is a 2 raised to n, and 8-bit means 2 raised to 8, so 256. Okay, so how many analog values is possible in 8-bit DAC? हमने 4 bit का लिया था. Okay, so 2 raised to 4 means 16. So we can find 16 levels in analog. So if it is a 8-bit DAC, so how many levels or analog values is possible in 8-bit DAC? Hello. If it is a 4-bit DAC, okay, so 2 raised to 4 means 16. So 0 to 15, उसमें 15 हमारा फुल स्केल वोल्टेज है. मैं आपको दूसरी तरह से पूछती हूँ. चलो, so 8-bit DAC अगर मेरा है, so what about my full scale voltage? हेलो, यहाँ पे देखो मैंने 4-bit DAC लिया है, सो वो कहाँ तक जाता है 15 तक. तो 15 मेरा हाईएस्ट लेवल होगा. क्यों 15 तक जा रहा है? 4 बिट है, सो 2 raised to 4 मीन 16 तक जा रहा है, सो 0 to 15. ओके, सो नाउ इफ इट इज a 2 raised to 8, सो फुल स्केल वोल्टेज क्या होगा वो पूछ रही हूँ मैं आपको. हेलो, प्लीज एनीवन टेल अस. इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इफ इट इज अ 4-bit DAC तो 2 raised to 4 मीन 16, तो 15 है वो हमारा क्या होगा फुल स्केल वोल्टेज होगा. तो आपको यहाँ पे 8-bit DAC दिया है, सो व्हाट इज माय फुल स्केल वोल्टेज? यस, इट इज 255. इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर 8 बिट है तो आप 256 तक जा सकते हैं. सो वी कैन एज्यूम फ्रॉम 0 to 255. तो 255 मेरा फुल स्केल वोल्टेज होगा. बट एज आई एक्सप्लेन कि फुल स्केल वोल्टेज अगर आपको नहीं दिया है देन यू कैन राइट 255. बट यहाँ पे देखो नेक्स्ट में इट इज ऑलरेडी मेंशन कि इफ फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज इज 10.2, उसने उस लिमिट को क्या कर दिया है, सेट कर दिया है कि मुझे सिर्फ 10.2 तक ही जाना है. तो अगर आपका फुल स्केल वोल्टेज 10.2 वोल्ट है देन बाय सेकंड डेफिनेशन मतलब ये रिजोल्यूशन क्या होगा 10.2 डिवाइड बाय 2 raised to 8 minus 1. सो आपका क्या होगा, इट इज 40 मिलीवोल्ट पर LSB. पर LSB इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे
यहाँ पे देखो, what is this? It is a ratio of change in the output voltage resulting from the change of 1 LSB at a digital input. हर बार LSB चेंज हो रहा है, that's why it is a 40 millivolt per LSB. Okay, now next, आपको अगर दिया हुआ है फुल स्केल वोल्टेज तो जो आपको दिया है वही लिखना है, अगर नहीं दिया है तभी आपको पूरा लिखना है कि 255. ओके, therefore we can say that the input change of LSB because the output also change by 40 milliwatt. आप उसको कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि LSB में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, so it is a 40 milliwatt. Okay, now another some parameter is also there कि output voltage. So equation of output voltage is equal to resolution into D. Now what is D? D it is the decimal value of your digital input. आपका जो भी digital input है, like मेरा digital input है कि 1111. So what is my decimal value? 15. So 15 into मेरा क्या होगा resolution, which give me V0. And this resolution it is also called as a step size also. Step size का meaning क्या आपको बता देती हूँ. वैसे resolution है क्या? Change in the output voltage when we change one LSB. तो अगर यहाँ से अगर मैं यहाँ पे पहुँचती हूँ, so LSB में एक चेंज हो रहा है, so it is the output voltage per change in LSB. Okay, so it is called as a one step. ये second, ये third, ये fourth, fifth, up to 15 step आएंगे. So 15 step बराबर, okay, into क्या होगा? Decimal value which give you the output. So resolution it is also considered as a step size also. Okay, so D it is the decimal value of digital input and V0 मेरा output voltage होगा. Okay, okay, now accuracy. Okay, so accuracy it is simply like आपका जो भी resolution है, okay, it is divided by 2, वो आपको क्या देगा? Accuracy देगा. It is a comparison of actual output voltage with expected output. Accuracy means क्या है? Of course, कि output voltage divided by expected output. So it is expressed in percentage. Ideally, the accuracy should be at a worst a plus or minus of its LSB. Okay. अब 1/2 आपको क्यों बोला है? क्योंकि आपके जितने भी लाइक नंबर लिखे हैं मैंने 0 to 50, ठीक है, उन सब में LSB क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. हाफ है उसमें 0 है, हाफ है उसमें क्या है? 1 है. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे मेंशन किया है कि चेंज कितना आएगा? प्लस माइनस 1/2 ऑफ इट्स LSB. If full scale voltage is 10.2, then for 8-bit DAC accuracy is this VOFS divided by 2 raised to n minus 1. It is also resolution. So resolution divided by 2. It is your accuracy. Okay. So 10.2 divided by 255 into 2. So you can consider it is a plus or minus 1/2 of your resolution. क्योंकि 1/2 0 वाले सारे बिट्स है and 1/2 1 वाला है. So आपकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी. So it is simply जो भी रिजोल्यूशन है डिवाइड बाय 2. So it is a 20 मिलीवोल्ट आएगा. सेटलिंग टाइम है. सो सेटलिंग टाइम आप सबको पता ही है. सेटल टाइम का मतलब क्या है कि टाइम रिक्वायर्ड ऑफ फॉर योर सिस्टम टू बी सेटल डाउन. सो इट इज कॉल्ड एज ए सेटलिंग टाइम. So time required operating conversion speed of DAC is specified by its settling time. मतलब conversion आपका complete हो चुका है after D2A, कितने टाइम में complete होगा? It is called as settling time. क्योंकि after conversion your system may be stable down or settle down. Okay, so settling time is time required for DAC output to 90 from 0 to full scale as the binary input is changed from all 0 to all 1. ऑल 0 टू ऑल 1 का मीनिंग क्या है? ये ऑल 0 थे और ऑल 1, ये पूरा कंप्लीट हो जाए मतलब आपका कन्वर्जन कंप्लीट हो चुका है. सो वही यहाँ पे मेंशन किया, टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑल 0 टू ऑल 1. ओके, इट इज अ सेटलिंग टाइम. नाउ डायनेमिक रेंज, आप सिंपल डेफिनेशन लिखना क्योंकि मे भी पूछेंगे तो आपको परफॉर्मेंस पैरामीटर है उसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, डिटेल में नहीं पूछेंगे, दैट्स वाई. और सारे भी नहीं करने, जो स्पेसिफाई है वही मैं आपको करवा रही हूँ. डायनेमिक रेंज क्या है? सो डायनेमिक रेंज ऑफ DAC इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ लार्जेस्ट आउटपुट टू द स्मॉलेस्ट आउटपुट एक्सक्लूडिंग 0. 0 को नहीं कंसिडर करना है, लार्जेस्ट आउटपुट एंड
smallest output. So it is also described in dB. For linear DAC, it is a 20 log 2 raised to largest output to the smallest output. इसका रेशियो है like 15/1 इस तरह से. But if you represent in a dB, okay, so it is a 20 log 2 raised to n. So by using 20 log उसकी वैल्यू आएगी 6n. ऑफसेट एरर एंड गेन एरर बस वहीं तक, एंड लीनियरिटी वहीं तक करना है. ऑफसेट एरर आपको बता देती हूँ क्या है, एंड लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी की क्या रिक्वायरमेंट है वो बता देती हूँ. अदरवाइज बाकी के पैरामीटर नहीं करने. मेन जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो कौन से, एक तो रिजोल्यूशन पूछ सकते हैं आपको, व्हाट इज रिजोल्यूशन, एक्यूरेसी, सेटलिंग टाइम, डायनेमिक रेंज एंड ऑफसेट एरर. ऑफसेट एरर इट इज वेरी सिंपल कि आइडियली क्या होना चाहिए कन्वर्जन और मेरा क्या मिला, मीन्स डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड एक्चुअल, इट इज योर offset error. Offset error is defined as a non-zero level of output voltage when all inputs are zero. यहाँ पे देखो वो एक लेवल है वो स्पेसिफाई किया offset error. Okay, it adds the constant value to all output value. Okay, and due to the presence of offset voltage in op-amp, a leakage current in a current switch. So it is simply defined as the non-zero level of the output voltage when all inputs are zero. यहाँ पे जब जीरो था इनपुट्स तो दोनों में कितना डिफरेंस है, एक्चुअल एंड आइडियल में, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑफसेट एरर. ओके, नॉन लीनियरिटी का मीनिंग क्या होता है, आइडियल डीएसी शुड बी लीनियर, जो हमने यहाँ पे दिखाया है. देखो डी टू ए कन्वर्जन कैसा होना चाहिए, लीनियर. अगर वो लीनियर नहीं है उसका मीनिंग है कि इट इज नॉट कन्वर्टेड एक्यूरेटली. Okay, so linearity is also important. Ideal DAC should be linear. For ideal DAC means digital to analog converter, the output voltage would be a linear function of input core. But it is fact that all DAC depart somewhat from the ideal linearity. Ideal वैसे possible ही नहीं है, थोड़ा difference आएगा ही. So typical factor responsible for linearity. Linearity के responsible factor क्या है वो define किए गए. एक तो आप जो भी डिजाइन करेंगे डिजिटल एनालॉग, नॉन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रजिस्टर एंड नॉन आइडियल इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस दैट इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस टू सर्किट. अब स्विचेस की क्यों रिक्वायरमेंट है वो भी आगे आएगा. व्हेन वी डिजाइन डिजिटल टू एनालॉग सो वी हैव टू रिक्वायर नंबर्स ऑफ स्विचेस डिपेंड अपॉन बिट्स. सो अगर वो नॉन आइडियल स्विचेस है देन नॉन लीनियरिटी इज जनरेटेड, नॉन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रजिस्टर, दिस आर द लाइक फैक्टर अफेक्ट द नॉन लीनियरिटी. स्टेबिलिटी, सो ऑफ कोर्स मेरी कोई भी सिस्टम हो वो कैसी होनी चाहिए, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, एज एंड पावर सप्लाई वेरिएशन. इट इज कॉल्ड एज स्टेबिलिटी. परफॉर्मेंस ऑफ कन्वर्टर चेंज विथ temperature, age, power supply variation. So all the relevant parameters such as offset, gain, linearity error must be specified over the full temperature and power supply range. And this parameter represents the stability. Means कि टेम्परेचर की फुल रेंज एंड पावर सप्लाई की भी मुझे नंबर्स ऑफ रेंज देनी है कि जिसमें मेरी सिस्टम है उसका परफॉर्मेंस क्या हो, स्टेबल. सो स्टेबिलिटी मीन्स इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर रेंज एंड पावर सप्लाई वेरिएशंस. ओके, नाउ एग्जांपल्स. इसके एग्जांपल आपको 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं, बहुत लेंथी नहीं होते हैं इसके एग्जांपल, तो मे बी आस्क इन 3 और 4 मार्क्स. ओके, फर्स्ट आपको दिया हुआ है 8-bit DAC has the output voltage range of 0 to 2.55 volt. Define its resolution in 2 ways. Okay, so n is equal to numbers of bit is equal to 8. Resolution is equal to 2 raised to n 2 raised to 8 is equal to 56. Okay, now आपको क्या बोला है 8 bit, तो ऑफ कोर्स नंबर्स ऑफ बिट कितने हैं मेरे पास 8, तो रेजोल्यूशन कितना मिला 256. आपको रेंज दी है 0 to 2.55 वोल्ट. सो व्हाट अबाउट माय लाइक फुल स्केल वोल्टेज, आपको आउटपुट वोल्टेज की रेंज ऑलरेडी दी हुई है 0 to 2.55 वोल्ट. तो फुल स्केल वोल्टेज मेरा क्या होगा, जो भी हाईएस्ट है, हाईएस्ट क्या है 0 या 2.55. हेलो,
2.55. Of course, it is the 2.55. Okay, so defines resolution in two ways. दोनों को तरीके से फाइंड करना था. एक हमने इससे फाइंड किया, numbers of ओके. सो वी ऑफ एस, और दूसरा किस तरह से हमने फाइंड किया, यूजिंग वी ऑफ एस 2n-1 2.55 2 - 8 - 1, इस तरह से किया हुआ. ओके, सो दोनों तरीके से फाइंड करना था, हमने दोनों तरीके से फाइंड किया हुआ. ओके, नाउ नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 8 बिट कन्वर्टर हैज अ रिजोल्यूशन ऑफ 10 मिलीवोल्ट पर बिट. ओके, फाइंड द एनालॉग आउटपुट वोल्टेज फॉर द फॉलोइंग डिजिटल इनपुट्स. ओके, अब आपको क्या दिया है, देखो बाइनरी दे दिया है, यू टू फाइंड द डिजिटल एनालॉग आउटपुट. ओके, एंड 8 बिट डीएससी दिया है. ओके, उल्टा दिया है, आपको रिजोल्यूशन दे दिया ऑलरेडी, एंड डी दिया है. तो ऑफ कोर्स इक्वेशन है ही हमारे पास, आउटपुट इज इक्वल टू क्या है, रिजोल्यूशन इनटू डी. ओके, तो रिजोल्यूशन आपको दिया है 10 मिलीवोल्ट, सो इट इज 10 × 10⁻³ ओके, एंड डी व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू, इसको फाइंड करो. चलो 138 आ रहा है. आपको ये बाइनरी दिया हुआ है, यू टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, कन्वर्ट करो बाइनरी टू डेसिमल. चलो आ रहा है, बताओ कैसे कैलकुलेट करना है. बाइनरी डेसिमल 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2⁻3 2⁻4 2⁻5 2⁻6 and 2⁻7. 0 1 2 3, तो 2⁻1 plus 2⁻3 4 5 6 and 7. चलो 2⁻7 plus 2⁻3 plus 2⁻1 एडिशन करो, क्या आता है. 2⁻7 मीन्स क्या होता है, 128. 138. यस, इट इज 138. 128 प्लस क्या आएगा, 2⁻3 मीन्स 8 plus 2. ओके, सो 128 plus 8 plus 2, so it is 138. Okay, multiply with resolution so we can find out. Same for next. इसका फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल फाइंड करेंगे, तो 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2⁻3 and 2⁻4 means 16. 16 multiply with 10 × 10⁻³ so it is 0.16 volt. Okay, now 8 bit DAC has a resolution of 20 millivolt per LSB. Find VOFS and VO. Both are different. Okay, full scale voltage and output voltage. If the input is this, एक तो इसका डेसिमल फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, दूसरा कि आपको रिजोल्यूशन दे दिया, 8 बिट भी दिया हुआ है, और VOFS फाइंड करने को बोला. सो रिजोल्यूशन की इक्वेशन क्या है, फुल स्केल वोल्टेज डिवाइड बाय 2⁻n-1. सो रिजोल्यूशन आपको 20 मिलीवोल्ट दे दिया है. सो VOFS 2⁻8-1, तो आपको VOFS क्या मिलेगा, 5.1 वोल्ट. ओके, नाउ फाइंड डी, डिफाइंड किया. ओके, 128 इंटू क्या आएगा, 20 × 10⁻³ वाई इट इज 20 × 10⁻³ बिकॉज मिलीवोल्ट में दिया है, दैट्स वाई. ओके, सो 20 × 10⁻³ एंड इसका आएगा 128, तो क्या मिलेगा 256. फुल स्केल वोल्टेज मेरा क्या आ रहा है, 5.1 वोल्ट, एंड V0 क्या आ रहा है, इट इज 2.56 volt. Okay, small example say maybe ask in like 3 or 4 marks. Okay, find out step size and analog output for a 4-bit R2R ladder DAC when input is this and this. Actually this
R to R ladder, it is a one of the method of like digital to analog converter. ओके बट इसमें इसका कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है इसलिए मैं करवा रही हूँ. इट इज़ वन ऑफ द मेथड R/2R ladder. आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं दिस पर्टिकुलर मेथड फॉर 7 मार्क्स. ओके फॉर कन्वर्जन के लिए वो नेक्स्ट आएगी. बट दिस पर्टिकुलर मेथड इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस. ओनली वी हैव टू सी द 4 बीट. सो n इज इक्वल टू 4. VUFS आपको V रेफरेंस दिया हुआ है 5 वोल्ट, वो मैक्सिमम है तो सिंपली हमने उसको एज्यूम किया 5 वोल्ट. कोई भी अगर आपको वोल्टेज दे रहे हैं सो VUFS क्या आएगा 5 वोल्ट. रेफरेंस वोल्टेज मुझे दिया हुआ है तो ये 5 वोल्ट है. रिजोल्यूशन क्या है कि 2n-1. n तो 4 ही है हमारे पास तो वी कैन फाइंड. दूसरा क्या बोला है आपको, स्टेप साइज बोला है कि फाइंड आउट द स्टेप साइज एंड एनालॉग आउटपुट. एनालॉग आउटपुट मतलब V0. ओके स्टेप साइज इट इज नथिंग बट रिजोल्यूशन. मैंने आपको आगे भी बताया हुआ है रिजोल्यूशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए स्टेप साइज. ओके अब आउटपुट फाइंड आउट करने को बोला है एनालॉग आउटपुट. तो रिजोल्यूशन हमारा ऑलरेडी फाइंड हो चुका है एंड डी क्या दिया है आपको 100. सो इसकी वैल्यू क्या होगी 8. सो इट इज 1/3 इंटू 8 सो वी कैन फाइंड. नेक्स्ट क्या दिया डिजिटल इनपुट 111 सो इट इज 15. सो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15 सो इट इज ए 5. ओके नेक्स्ट वन है 12 bit DAC has a step size of 8 millivolt. Okay, determine the full scale output voltage and percentage resolution. Also find the output voltage for the input of particular this. Okay, आपको step size दे दी है 8 millivolt. Okay, so full scale voltage क्या है आपके पास. फुल स्केल का मीनिंग क्या होता है कि स्टेप साइज इंक्लूडिंग क्या होगा कितने स्टेप्स है. स्टेप साइज एंड इंक्लूडिंग कितने स्टेप है. ओके तो कितने स्टेप आएंगे तो कि 2n-1 ओके इनटू स्टेप साइज 8 मिलीवोल्ट. सो इट इज ए VUFS. ओके सो क्या आएगा वो 32.76. ओके वैसे फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज 12 बीट के हिसाब से अगर आप दो लाइक कंसीडर करो तो 2:12 आता है. बट यहाँ पे आपको फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज फाइंड करने को बोला है बाय यूजिंग स्टेप साइज. स्टेप साइज आपको दी हुई है उसका यूज करके आपको फाइंड आउट करना है. सो वो क्या आएगा स्टेप साइज इंटू क्या आएगा जितने भी स्टेप है. ओके तो कितने स्टेप होंगे ऑफ कोर्स बीट कितने हैं 12. सो 2n-1 उतने स्टेप आएंगे इंटू स्टेप साइज वो मुझे फुल स्केल देगा. आफ्टर यूजिंग दिस फुल स्केल परसेंटेज रिजोल्यूशन आपको बोला. सो एक्चुअल में क्या है यहाँ पे तो कि 8 मिलीवोल्ट. ओके फुल स्केल क्या मिला आपको 32.76. ओके सो परसेंटेज रिजोल्यूशन इट इज 0.02.442. सो आउटपुट वोल्टेज फॉर द इनपुट इज क्या आएगा आउटपुट वोल्टेज फॉर द इनपुट तो कि 8 मिलीवोल्ट था मेरे पास. स्टेप साइज इनटू क्या बोला है आपको कि इसकी डेसिमल वैल्यू. ओके सो इट इज ए दिस V0 अल्टीमेटली क्या होता है कि रिजोल्यूशन इनटू दिस. तो रिजोल्यूशन मतलब क्या है 8 मिलीवोल्ट. तो एक्चुअली मेरा रिजोल्यूशन क्या है 8 मिलीवोल्ट. ओके बट VUFS अगर मैं फाइंड कर रही हूँ सो मुझे कितना मिल रहा है इट इज 32.76 फुल स्केल वोल्टेज. ओके सो ये एक्चुअल मेरे स्टेप साइज है और ये क्या है वोल्टेज में जितना भी चेंज आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 100 विच गिव यू द परसेंटेज रिजोल्यूशन. सो 8 मिलीवोल्ट एक्चुअली मेरा रिजोल्यूशन है. तो रिजोल्यूशन इनटू डी क्या है अगर इसका आप डेसिमल फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 1389. सो इट इज योर आउटपुट वोल्टेज. ठीक है एक बार सारे पैरामीटर अच्छी तरह से देख लेना उसके बाद क्लियर हो जाएगा किस तरह से आपको ये करना है. ठीक है उसके बाद बेसिक कन्वर्जन टेक्निक्स आ रही है. दिस टू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. कुछ भी ना आए ये दोनों मेथड तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि ये नॉर्मली पूछते हैं स्पेशली दिस R/2R ladder D2A converter because this R/2R ladder D2A converter having the more advantages compared to this first one binary weighted resistor. Okay there are mainly two techniques used for digital to analog conversion, a binary weighted resistor D2A converter and R/2R ladder D2A converter. Okay it is a binary weighted रजिस्टर D2A कन्वर्टर. ओके यहाँ पे से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हम बिट दे रहे हैं डिजिटल बिट कौन से B1 B2
P3 and P4. Okay, it is the op-amp, operational amplifier. Okay, for addition purpose of this numbers of resistors or switches. Okay, so binary DAC use op-amp to sum an n-bit binary current derived from the reference voltage VR via current scaling 2R, 4R, 8R, 2 raised to n R as shown in figure. This op-amp normally used for addition of currents, okay, और voltages. Okay, अब यहाँ पे देखिए क्या है मेन, यहाँ पे मैं क्या दे रही हूँ बिट्स. अगर मैं 0 दे रही हूँ तो ये स्विच क्या होगी, ऑन हो जाएगी. अगर मैं 1 दे रही हूँ तो ये स्विच क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी. अगर मैं 1 दे रही हूँ मतलब ये स्विच क्लोज होगी. क्लोज होगी उसका मीनिंग क्या है, इसका जो भी डिजिटल डेटा है वो यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है, और वो डेटा मुझे यहाँ पे देना है, उसके थ्रू वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनालॉग. ओके, बट इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय दिस VR एंड 2R. यहाँ पे अगर VR है तो यहाँ पे वोल्ट क्या होगा, 2R रजिस्टर. यहाँ पे क्या है 4R, यहाँ पे क्या है 8R, यहाँ पे क्या है 2 raised to n numbers of R. So these are the weighted values of resistor. इसका वेट होगा ना, इसका 2 वेट है रजिस्टर का, इसका 4 वेट है रजिस्टर का, इसका 8 है और इसका 2 raised to n. So it is called as a binary weighted resistor, a D2A converter. ये weighted है उसका 2 raised to n. ठीक है, ओके. ये कैसे वर्क करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्विच ऑन है, ठीक है, सो नॉर्मली क्या होता है, जो भी आउटपुट वोल्टेज है VR बाय क्या होगा, R. ठीक है, क्या होगा, जो भी रजिस्टर है एंड जो भी लाइक वोल्टेज है, मुझे क्या फाइंड करना है, करंट. क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे क्या जा रहा है, करंट जा रहा है. करंट का क्या हो रहा है, एडिशन, बाइनरी कन्वर्टेड इनटू करंट. यहाँ पे 1 है मतलब स्विच क्लोज हो जाएगी. सो यहाँ से जो भी वोल्टेज करंट आएगा इट इज कन्वर्टेड इनटू कर वोल्टेज एंड रजिस्टर थ्रू करंट मिलेगा. यहाँ पे I1, तो I1 यहाँ पे जाएगा. यहाँ पे I1, I2, I3 जितने भी आएंगे सबका एडिशन होगा विच इज कन्वर्टेड इनटू एनालॉग वोल्टेज. ओके, जैसे 1 1 0 0 मैंने लिया, सो इट इज I1 प्लस I2 बिकॉज दो ही स्विच कनेक्ट होगी. SW3 एंड SW4 क्या रहेगी, 0. सो अल्टीमेटली I क्या होगा, तो VR जो भी दिया है डिवाइड बाई यहाँ पे जो भी रजिस्टर है, सो इट इज अ VR बाय R. अगर स्विच ऑफ है मतलब 0 दे रही हूँ मैं यहाँ पे, सो इट वुड बी 0. सो ऑपरेशनल एम्पलीफायर इट इज यूज्ड एज समिंग एम्पलीफायर. आपको यहाँ पे जो सिंबल दिखाया गया ट्राइंगुलर का, इट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज्ड एज अ समिंग एम्पलीफायर. Due to high input impedance of op-amp, summing current will flow through RF. Hence, the total current RF can be given as, of course, total current क्या होगा, I1 plus I2 plus I3 plus I4 means it is IT, total current. Okay, अगर सारी स्विच एक्टिवेट है, टोटल करंट मुझे क्या मिलेगा ये. सो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, सो क्या मिलेगा आपको, तो IT एंड RF. अब ये माइनस क्यों आ रहा है वो आपको बताते हैं. इट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर. अगर ये टर्मिनल है ना वो इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसको एक्चुअली इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलते हैं. इन्वर्टिंग इसीलिए है कि आप जो इनपुट दे रहे हैं वो माइनस टर्मिनल पे है एंड प्लस को क्या किया, ग्राउंड किया है. दैट्स व्हाई इट इज ए इन्वर्टिंग टर्मिनल. अगर नॉन इन्वर्टिंग होता देन वी जस्ट गिव दिस पर्टिकुलर एट अ प्लस टर्मिनल. ओके, यहाँ पे माइनस है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस. ओके, सो V0 इज इक्वल टू माइनस IT RF. ओके, IT मीन्स टोटल एडिशन एंड RF. तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो माइनस I1. अब I1 क्या होगा, चलो I1 क्या होगा, कौन मुझे बताएगा. I1 क्या होगा, एक तो VR बाय R, बट रजिस्टर क्या है 2R, तो VR बाय 2R इंटू 1. अगर ये स्विच क्लोज हो रही है देन VR डिवाइड बाय 2R इंटू क्या आएगा, V1. सेम फॉर नेक्स्ट के लिए क्या आएगा, VR बाय 4R इंटू V2, VR बाय 8R इंटू V3 अप टू n नंबर्स. RF को अगर लाइक VR बाय R को अगर कॉमन निकाल रहा है, सो इट इज अ B1 बाय 2. B1 बाय 2 तो 2 raised to minus 1 लिख सकते हैं हम उसको. सेम B2 इंटू 2 raised to minus 3, B3 इंटू 2 raised to minus 3 अप टू 2 raised to minus n. ओके, ये सारे क्या है, रजिस्टर के वेट्स है जो हमने यहाँ पे लगाए हैं, 2R, 4R, 8R, ये सब. ओके,
सो अल्टीमेटली क्या आएगा, अगर मैं आर रेफरेंस को ऐसे आर कंसिडर कर लेती हूँ, ठीक है, तो आर एफ एंड आर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली दिस। वी जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वी आर। तो अब इजी है, देखो ये इक्वेशन थ्रू मैं डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकती हूँ। लाइक मैंने बीट लिया है कि 1 0 0 0, सो मुझे सिर्फ कितना मिलेगा, वी जीरो इज इक्वल टू माइनस वी आर टू रेज टू माइनस 1। वो मेरा क्या होगा, एनालॉग वोल्टेज। तो डिजिटल, ये डिजिटल फॉर्मेशन है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनालॉग में। वी कैन फाइंड एनालॉग आउटपुट बाय यूजिंग दिस नंबर्स ऑफ बिट्स। ओके, इसका आप एक काम करना, एक वैल्यू लेके देख लेना, तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। इफ आई टेक 1100 1100 लेती हूँ तो क्या आएगा, ओनली I1 प्लस I2। ओके, कि दो ही स्विच क्या होगी, क्लोज होगी। यहाँ पे आपको जो दिखाया है ना पूरा, वो किसके लिए दिखाया है, 1 1 1 1। ऑल अगर 1 है तो क्या आते हैं, इस टाइप का कन्वर्जन होगा। बट बहुत इजी है ये, बट साथ में इसके डिसएडवांटेज भी बहुत ज़्यादा है। इजी तो बहुत है क्योंकि सिंपली VNR देना है, स्विच को अगर 1 दिया तो ओपन करना, अदरवाइज 0 करना साफ। बाद में अगर 2 1 है तो 2 करंट मिलेंगे, उसका क्या करना है, एडिशन। एंड एम्पलीफायर थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज में। ओके, ड्रॉबैक्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वी हैव टू रिक्वायर द हायर वेट रजिस्टर। आप रजिस्टर का कितना वेट का यूज कर रहे हैं, देखो वाइड रेंज ऑफ रजिस्टर वैल्यू आज रिक्वायर्ड, 2R 4R 8R up to 2 raised to NR. Therefore, a largest register is 128 times the smallest one. अब जितने बिट इंक्रीज करते जाएंगे, रजिस्टर की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। So because of this wide range of register value has restriction on both higher and lower end, it is impractical to fabricate large value of register in IC. अगर वो लाइक 256 R है तो उसको फैब्रिकेट करना इन पर्टिकुलर IC, इट इज वेरी डिफिकल्ट और इम्प्रैक्टिकल। ओके, एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सच रजिस्टर ड्यू टू बायस करंट आल्सो अफेक्ट द एक्यूरेसी। जितना रजिस्टर आपका ज्यादा है उसमें से वोल्टेज ड्रॉप पे आप फाइंड करेंगे, उसके अक्रॉस इट इज आल्सो अफेक्टेड योर एक्यूरेसी। फॉर स्मॉल नंबर्स ऑफ वैल्यू लोडिंग अफेक्ट में एरर। ओके, सो मेन क्या प्रॉब्लम है, एक तो रजिस्टर की जो वेटेड वैल्यूज है, अगर मैं 8 बिट के लिए यूज करती हूँ, सो इट रिक्वायर द 180 टाइम्स लार्जर रजिस्टर कंपेयर टू स्मॉल वन। फर्स्ट वाला कौन सा, तो 2R, और लास्ट वाला कितना बन जाएगा, 256R। सो इट इज ए like huge difference between register value, so it is impractical to fabricate over the IC. Finite resistance of switching disturb the binary weighted relationship among the various current, particularly in most significant bit position. This switches also provide some resistance which disturb particular relationship, क्योंकि करंट के बीच में, रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन है ना, I is equal to VR by R, उसमें अगर स्विच का अलग से रेजिस्टेंस ऐड होगा, so of course it affect the accuracy. So because of this all drawbacks, especially the requirement of wide range of resistor restrict the use of binary weighted DAC below 8 bits. Because of this requirement कि रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा चाहिए, it is only used below 8 bit. We are use only 8 bit DAC up to, हम उसको 16 bit या 32 bit DAC using this binary weighted से नहीं कर सकते। उसके लिए we have to use second method, it is a R2R ladder D2A converter, which we will cover in our next lecture Wednesday. Up to this point, if you have any doubt, then please ask. हेलो, एनी डाउट? एक्चुअली पूरा चैप्टर थियोरेटिकल है, बट बीच बीच में स्मॉल एग्जांपल्स है, सिंपली इक्वेशन थ्रू, तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। मेनली 4 थियोरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 या मैक्सिमम 5, 2 मेथड्स फॉर D2A एंड 2 और 3 मेथड्स फॉर A2D, उसमें से ही आपको पूछ सकते हैं। ओके, पूरा चैप्टर थियोरेटिकल है, आगे के इसीलिए थोड़ा बोरिंग होगा। आगे के जितने भी चैप्टर्स उसमें सब लॉजिकल था, जो इसमें नहीं है, दैट्स वाई। नेक्स्ट अभी भी जो यूनिट आएगा वो भी थोड़ा लॉजिकल है, 5th वाला, बट ये 4th थोड़ा मतलब थियोरी टाइप का है। ओके, एनी डाउट इन दिस? ओके, एंड मैंने सबके असाइनमेंट 2 वो चेक कर दिए हैं, जितने भी अपलोड किए थे, ठीक है।
एंड रिगार्डिंग लैब मैंने देखा किसी ने 1 अपलोड किया है, किसी ने 1 2 3 अपलोड की है, किसी ने 1 2 3 4 9 अपलोड किया है। मतलब वो आई थिंक किसी ने भी कंप्लीट नहीं किया हो। मैंने सबका देखा, मैंने वैसे सबका नहीं देखा, किसी ने किया भी होगा, लेकिन मैंने आई थिंक 6 और 7 देखे, बट उसमें कंप्लीट नहीं था तो मैंने मार्किंग नहीं किया होगा। सो यू टू कंप्लीट बाय वेडनेसडे। कितना कंप्लीट करना है, हमारे कितने प्रैक्टिकल हुए, कोई मुझे बताएगा? लैब प्रैक्टिकल की बात कर रही हूं मैं। 9, एक ही प्रैक्टिकल हमारा बाकी है, 9 हो चुके हैं। सो ऑल 9 यू हैव टू सबमिट ऑन और बिफोर 16। 17 जब मैं लैब में आऊं उससे पहले आपका चेक हो जाए, मतलब 16 शाम रात 12 तक आपको कर देना है। ओके, 12 PM ऑन 16 को आपको 12 PM तक कर देना है। 17 को मैं देखूंगी आप, ठीक है, क्योंकि सबने रैंडम अपलोड किया हुआ है। सो प्लीज उसमें आपके जितने भी प्रैक्टिकल हुए हैं 1 2 4 फर्स्ट थे, उसके बाद 5 6 7 8 9 सारे हो चुके हैं हमारे, सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल बाकी है 10 वाला। ओके, सो जो शिफ्ट रजिस्टर है वो एक ही बाकी है। एंड इन दिस लैब थर्सडे में 7 नंबर का है मल्टी सिम का, उसमें आई थिंक सम स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स है तो मैं वापस करवाऊंगी, लेकिन अगेन वो आपके लैपटॉप थ्रू ही करवाऊंगी, ठीक है? या फिर क्रिश अपना ले आएगा, या फिर किसी को भी अगर इंटरेस्ट है सीखने में तो कोई और भी लेके आ सकता है। मैं यहाँ से इंस्ट्रक्शन करूंगी, उससे हिसाब से आपको और एंड गेट बनाने हैं उसमें, जो मैंने लास्ट टाइम बनाए थे फॉर 7 नंबर के प्रैक्टिकल के लिए। ओके, लेकिन बिफोर 16, ऑन और बिफोर 16 आपके 9 प्रैक्टिकल मैंने जो लिंक दी है, मतलब आपको टर्न इन करके कर देना है। ओके, एंड अनदर थिंग, यस, आपकी सैटरडे टेस्ट होगी फॉर दिस यूनिट जो कंप्लीट हो चुका है, यूनिट नंबर 3 एट 4 to 4:55। ओके, सैटरडे 4 to 4:55 अगेन इन गूगल फॉर्म आपकी यूनिट नंबर 3 की टेस्ट होगी। ओके, सो दोनों करना है, को आपकी जो टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन करनी है, प्लस वेडनेसडे तक सारे प्रैक्टिकल अपलोड हो जाने चाहिए। ओके, एनी डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, अदरवाइज आई जस्ट टेक अटेंडेंस।